صحافی اسد طور کی گرفتاری حراست کرنے سے روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی دیکھیے، صحافی اسد طور کی ایف آئی اے طلبی اور حراست کرنے کے خلاف چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کیا اور ایف آئی اے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا ہے کہ کل انہوں نے عدالت کو بتایا تھا کہ آپ کا نوٹس 2 لائن کا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ نوٹس میں کیا لکھا ہے، ایف آئی آر میں کیا لکھا ہے، آپس میں مطابقت نہیں رکھتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بتانا نہیں چاہ رہے یا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں، کیا کہا ہے اس نے سپریم کورٹ سے متعلق۔ ایف آئی اے کے وکیل نے کہا کہ عدالت کے پاس از خود نوٹس کا اختیار نہیں ہے، پٹیشن کے بعد ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر نوٹس عدالت کالعدم قرار دے دے تو کیا ایف آئی آر پر کچھ فرق پڑے گا یا نہیں، جس کے بعد عدالت نے اسد طور کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ تاہم چیف جسٹس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جہاں پر عدلیہ یا عام پروسیس کا معاملہ ہو، ایسے معاملات میں خاص طور پر احتیاط برتنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ کیس، اے ٹی سی لاہور نے اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 16 مارچ تک کی توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے اسد عمر کی حاضری معافی کی درخواست بھی منظور کر لی۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ کیس، اے ٹی سی لاہور نے اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 16 مارچ تک کی توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے اسد عمر کی حاضری معافی کی درخواست بھی منظور کر لی۔ سندھ ہائی کورٹ میں سکرن ماڑی جلبانی میں شہریوں کی ہلاکت کی جوڈیشل تحقیقات اور ملزمان کی گرفتاری کی درخواست پر سماعت۔ ڈی آئی جی بنظیر آباد نے پوری رپورٹ پیش کر دی۔ عدالت نے ڈی آئی جی کی حاضری سے مستثنی قرار دینے کی درخواست پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ڈی آئی جی نہیں تو آئی جی کو آنا پڑے گا۔ سکرن ماڑی میں ڈاکوں کی تلاش میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فائرنگ سے 4 دیہاتی ہلاک ہوئے تھے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا، درخواست جوڈیشل کمیشن کے لیے دائر کی گئی تھی، اے ٹی سی میں چالان جمع ہو چکا ہے، درخواست غیر موثر ہو چکی ہے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے وکلاء صفائی کو کمنٹس کی نقل فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 28 مارچ تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے بشرا بی بی کی سب جیل میں موجودگی پر رپورٹ طلب کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کے سینئر افسر کو سب جیل بنی گالہ کا دورہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا، بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کی درخواست پر سپرنٹینڈنٹ جیل آرڈر پاس کرے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل آرڈر کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار کے پاس جمع کرائیں۔ دوران سماعت بنی گالہ منتقلی کی چیف کمشنر کی منظوری کا نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے اسٹیٹ کاؤنسل سے استفسار کیا کہ یہ گھر کس کی ملکیت ہے، کیا مالک مکان کی مرضی سے یہ ہوا ہے؟ مہنگائی کی چکی میں پسے کراچی والوں کے لیے بری خبر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر پرائس کنٹرول پروگرام شروع کرنے کے لیے کمشنر کراچی کی جانب سے قیمتوں کے نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیے گئے، تاہم تاجروں نے کمشنر کراچی کی لسٹ مسترد کر دی ہے۔ چینی ہول سیل میں 135 روپے فی کلو جبکہ ریٹیل میں 150 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اے ایم آئی نیوز کے نمائندے انجم بھاب سے، جو اس وقت چوڑیا بازار میں موجود ہیں۔ بتائیے گا انجم۔ ہم کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں موجود ہیں۔ کمشنر کراچی نے فہرست جاری کی ہے جس میں دالیں، چینی، آٹے کی قیمتیں دی گئی ہیں، اور چینی کی قیمت جو کمشنر کراچی نے مقرر کی ہے ہول سیل کی سطح پر، وہ 123 روپے فی کلو مقرر کی ہے، جبکہ ہول سیل مارکیٹ میں جب ہم آئے ہیں تو یہاں پہ ریٹ پتہ کیا ہے تو وہ تقریباً 135 روپے فی کلو ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہاں 135 ہے تو ریٹیل میں تقریباً 145 سے 50 روپے فی کلو بک رہی ہے۔ دکانداروں سے ہم نے پتہ کیا جو ہول سیلر ہیں یہاں کے کہ کیا صورتحال ہے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں ملوں سے چینی مہنگی مل رہی ہے تو ہم کس طرح سستی بیچ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہول سیلر موجود ہے۔ خالی چینی تھوڑی سب میں مسئلہ ہے، دال میں، چاول میں، چینی میں سب میں مسئلہ ہے۔ حکومت آگے ملروں کو بولے اور کیا، یہاں تو کچھ نہیں ہوتا تھا نا، یہ دنیا ہے تو نہیں بیچ گئے، مین مسئلہ مل والے کو۔ کمشنر کراچی نے تو ریٹ جاری کر دیے ہیں، دکاندار اس پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو چینی مہنگی ملی ہے۔ تو یہ صورتحال اب شہریوں کے لیے کافی سنگین ہو جائے گی، ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ چینی ہول سیل مارکیٹ سے ریٹیل مارکیٹ میں نہ پہنچی تو یقیناً ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹ میں چینی ناپید ہو جائے گی۔ جی، نئے تعلیمی سال 2024-25 میں تبدیلیاں، شیڈول تیار کر لیا گیا ہے۔ اسکول اور کالجز کا تعلیمی سال 1 اگست سے شروع ہوگا۔ محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے۔ انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا انور۔ یہ دیکھیں، محکمہ تعلیم سندھ نے 2024-25 میں تبدیلی کے ساتھ شیڈول جاری کر دیا، جس کے تحت اب اسکولوں اور کالجوں کے اندر نیا تعلیمی سال 1 اگست سے شروع کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نرسری سے تیسری جماعت سے جو طالب علم ہیں ان کے امتحانات نہیں ہوں گے بلکہ ان کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
चौथी जमात से 8वीं जमात के तलबा के इम्तहानात 15 अप्रैल से 27 अप्रैल तक मुनक्किद किए जाएंगे। 9वीं और 10वीं जमात के बोर्ड के इम्तहानात मई में लेने का फैसला किया गया है। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात मई के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि मैट्रिक के नताइज का ऐलान 31 जुलाई तक कर दिया जाएगा। इंटर के नताइज के ऐलान का फैसला 31 अगस्त तक का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ इम्तहानात में 20% MCQ, 40% कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन और 40% एक्सटेंडेड क्वेश्चन का फैसला किया गया है, क्योंकि हालिया शिकायत सामने आई थी। और मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। इसके साथ साथ मौसम सरमा की तातीलात 31 दिसंबर से 31 दिसंबर रहेंगी। इन तमाम फैसलों की मंजूरी महकमा तालीम हुकूमत सिंध ने दे दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ के साहबजादों की दायमी वारंट की मुअत्तली से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस में वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था। वकील ने बताया हुसैन नवाज और हसन नवाज के अदालत हाजिर न होने के बायस दायमी वारंट जारी हुए थे। दोनों 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते थे। दायमी वारंट मुअत्तल किए जाएं। नैब हुकाम ने कहा कि मुल्ज़िमान पेश होना चाहते हैं तो अदालत मौका दे सकती है। नाकाबिले जमानत और दायमी वारंट्स का मकसद मुल्ज़िम को अदालत के सामने पेश करना होता है। नून लीग के रहनुमाओं की ज़ाती उम्रा आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में मलिक अहमद खान, अयाज सादिक और साद रफीक शामिल थे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे उल्फत मुगल से। जी उल्फत, और कौन शामिल था? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और साबिक वफाकी वज़रा जिसमें अनोशा रहमान, ख्वाजा साद रफीक, अताउल्लाह तारड़ ने मुलाकात की है, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है और हुकूमत साजी और वफाकी काबीना में मुख्तलिफ नामों पर भी नवाज शरीफ ने तजावीज़ दी हैं और मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया, जिससे आने वाले दिनों में मुख्तलिफ जो वफाकी वज़रा हैं उनको काबीना में शामिल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उल्फत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब नए फॉर्म 45 दिए जा रहे हैं। PTI रहनुमा कामरान बंगश ने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2018 के निस्बत 2024 के इंतखाबात में अवाम ने PTI को ज़्यादा सपोर्ट किया। के बिल्कुल नए फॉर्म 45 बनाए गए हैं। ने ये इस्तदा की हाई कोर्ट से कि जो CCTV फुटेजेस हैं, जो उस रात के जिस वक्त कंसोलिडेशन हो रही थी, वो CCTV फुटेजेस भी प्रिजर्व कर दिए जाएं कि हम जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं तो उस वक्त ये सामने आए कौन लोग थे जिनके सामने फॉर्म 47 भी बनाए गए। जितना लीड हमें 2018 में मिला था उससे कई ज्यादा 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शंस में मिले। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी की क़यादत में वफ़द की गवर्नर सिंध से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात, हुज्जाज, ज़ायरीन को सहूलतें, रोड टू मक्का और दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तानी हुज्जाज और उम्रा ज़ायरीन के लिए सहूलतों की फराहमी काबिल तहसीन है। सऊदी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान का अमन उम्मत इस्लामिया का अमन है। सऊदी हुकूमत पाकिस्तान में सरमायाकारी को अहमियत देती है। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को मज़ीद सहूलतें देने के लिए कोशा हैं। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। मंशियात फरोशी और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी नज़ीर। हाँ बिल्कुल, देखिए रेंजर्स की जानिब से बल्दिया टाउन के इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है जो मंशियात फरोशी और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान में सरगुना तौल्ला और अदनान खान शामिल है। मुल्ज़िमान के कब्जे से पुलिस यूनिफॉर्म भी बरामद हुई है और पुलिस के जाली गार्ड, 2 पिस्तौल और मंशियात भी बरामद की गई है। मुल्ज़िम अताउल्ला बैनल सूबाई मंशियात गिरोह का सरगना है जो खैबर पख्तूनख्वा से मंशियात मंगवाते हैं और इस के मुताबिक मुल्ज़िम के मुताबिक कराची में 9 अफराद के जरिए मंशियात सप्लाई भी करता था। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुल्ज़िम मंशियात खरीदारी के लिए मुख्तलिफ अकाउंट इस्तेमाल करता था और भारी रकम खैबर पख्तूनख्वा में साथियों को भिजवाता था और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में भी मुलविस का इंकशाफ किया है और मुल्ज़िम गिरफ्तार मुल्ज़िमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया ताकि मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट में 18 साल लड़की की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। तफ्तीशी अफसर ने बताया ट्रैवल हिस्ट्री से मालूम हुआ कि लड़की ने मुल्क के बाहर सफ़र नहीं किया। लड़की हयात है और मुल्क में ही कहीं मौजूद है। तहकीकात से मालूम हुआ लड़की ने निकाह किया है और किसी बंगले में काम करती थी। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने कहा कि आजकल नौजवान लड़कियों के पास मोबाइल है, किसी से तो बात करती होगी। अदालत ने आइंदा समाअत पर DIG से जवाब तलब करते हुए समाअत अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
सिंध हाई कोर्ट में गुमशुदा अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। जी, आज सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत हुई, जिसमें आज अदालत ने तफ्तीशी अफसरान से पूछा कि लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं, क्योंकि मलिक से लापता नवीद इकबाल की बाजियाबी के लिए बताया गया कि 33 GITs हो चुकी हैं और 18 PTF सूबाई टास्क फोर्स के भी सेशन हुए हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। अदालत ने उनको कहा कि अपनी ये तफ्तीश जारी रखें, लेकिन अभी तक कुछ उन्होंने सरकारी ऑफिशियल का ये भी कहना था कि अब शहरी हमसे ताबुन नहीं कर रहे हैं और 15 GITs में तो शहरी ये शिकायत करने वाले शहरी यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, और जिनको हमने शक के इल्जाम में गिरफ्तार किया था उनकी जमानत भी हो गई है। ताहम इस पर अदालत का कहना था क्योंकि केस की तवालत हो गई है और शहरी मायूस हो रहे हैं, लेकिन आपको अपनी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए, और कहा है कि मॉडर्न डिवाइस इस्तेमाल करते हुए इनकी तहकीकात करें और समाज 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शुएब शाहीन कहते हैं फॉर्म 45 मेरा वोट मेरे मुखालिफ उम्मीदवार के खाते में और उसका मेरे खाते में डाल दिया गया। 19 पोलिंग स्टेशन पर 90%, 39 पर 80% और 70 पोलिंग स्टेशन पर 70% से ज्यादा टर्नआउट दिखाया गया। 168 को 468 किया है, अगले खाने में उसको 168 ही रहने दिया। टोटल मेरे हैं 387 पोलिंग स्टेशंस, जिसमें उन्होंने टेम्परिंग की है और कटिंग की है। उनके खिलाफ FIR भी कटाएंगे, ये जेलों में भी जाएंगे, ये नौकरी से भी जाएंगे। रिटर्निंग अफसर हूँ या हमारे जो अपोनेंट कैंडिडेट हूँ, जो मेरा वोट था उनके खाते में, उनका वोट था मेरे खाते में। 19 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसमें 90% प्लस टर्नआउट दे दिया। 39 पोलिंग स्टेशन वो हैं जिसमें 80% से ज्यादा दे दिया। 82 पोलिंग स्टेशन वो हैं जिसमें 70% से ओवर एंड अबव दे दिया। एक व्हाइट पेपर जारी करने लगे हैं, उसमें मैं अपने हल्के को पुराने वाला, अपने वाला, दूसरे वाला सारा सामने रखूंगा। और अब बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर समाअत, और अदालत ने हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी कर दी है। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर पेश हों, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की जानिब से यह अहकाम जारी किए गए। हुक्म इम्तना बुध के दिन तक होगी और बुध के दिन इस केस को दोबारा सुनेंगे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की जानिब से कहा गया है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक की तौसी कर दी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर समाअत, और पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हलफ ना लेने के हुक्म में 13 मार्च तक की तौसी कर दी है। उस्मान अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा उस्मान। जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी। 5 रुकनी जज जो है उसकी समाअत कर रहा था। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में जो है मसरूफ है और इस वजह से जो है वो यहाँ पर नहीं आए, जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने उनसे इस्तिफसार किया कि अटॉर्नी जनरल को तो हमने खुद तलब किया था कि आप आ जाइए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि वो आइंदा समाअत पर जो है पेश होंगे। फिर जो दरख्वास्तगुजार वकील थे उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो नए एडवोकेट जनरल है वो अब तैनात नहीं हुए हैं और उनकी आज तैनाती होगी, तो इसके बाद जो है वो फिर नए एडवोकेट जनरल जो है वो इस केस में अदालत की माविनत करेंगे। बाबर अवान जो है वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि जिन पार्टियों को एक कौमी असम्बली की सीट थी तो उनको 2 सीटें जो है वो मखसूस दिए गए हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हुए थे आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया और उनकी जो सीटें हैं वो 93 है इस वक्त, लेकिन उनको एक भी मखसूस सीट जो है वो नहीं दी गई, जिस पर अदालत। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अच्छी बात है कि 50 साल बाद भुट्टो साहब को इंसाफ मिल गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की ATC में गुफ्तगू, कहती हैं हम भी 10 माह से इंसाफ मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अच्छा है अगर हमें भी जीते जी इंसाफ मिल जाए। उम्मीद है इंसाफ मिलने में 50 साल नहीं लगेंगे। मरियम नवाज कहती हैं ज्यादती करने वालों के लिए संग दिल साबित होंगी, वो तो पहले से ही संग दिल हैं। मरियम नवाज की खुशी और वजीर आला बनने की फरमाइश पर निज़ाम तबाह किया गया, लोगों के वोट को चोरी किया गया, माओ और बहनों को जेल में रखा गया। राशन के थैलों पर वालिद की तस्वीर उस वक्त लगाएं जब अपनी जेब से दें। अच्छी बात है कि 50 साल बाद भुट्टो साहब को इंसाफ मिल गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की ATC में गुफ्तगू, कहती हैं हम भी 10 माह से इंसाफ मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अच्छा है अगर हमें भी जीते जी इंसाफ मिल जाए। उम्मीद है इंसाफ मिलने में 50 साल नहीं लगेंगे। मरियम नवाज कहती हैं ज्यादती करने वालों के लिए संग दिल साबित होंगी, वो तो पहले से ही संग दिल हैं। मरियम नवाज की खुशी और वजीर आला बनने की फरमाइश पर निज़ाम तबाह किया गया,
लोगों के वोट को चोरी किया गया, माओ और बहनों को जेल में रखा गया। राशन के थैलों पर वालिद की तस्वीर उस वक्त लगाएं जब अपनी जेब से दें।